Hello to all the students and a very warm welcome to Supporting Learners. In this video, we will solve and discuss NCERT Exemplar of Class 12 Biology, Chapter 2, that is Sexual Reproduction in Flowering Plants, and we will cover all the very short answer type questions in this video. So let's start with the first question. First question says, name the component cells of the egg apparatus in an embryo sac. तो एम्ब्रियो सैक की जो एग एपरेटिस है उसकी कंपोनेंट सेल्स आपने बताने हैं. तो आंसर है 2 synergids and 1 egg cell. तो इसमें मेच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम हमेशा दिमाग में होना चाहिए. एक एग और 2 synergids मिलकर के बनाते हैं एग एपरेटिस. Moving on to the second question. Second question says, name the part of the gynoecium that determines the compatible nature of pollen grain. तो गाइनोशियम के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. इन तीनों में से जो कंपैटिबल नेचर डिटरमाइन करता है पॉलन का वो स्ट्रक्चर है स्टिग्मा. पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर लैंड करता है तो पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप. अगर वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो पॉलन जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी. If it is a wrong type of pollen grain, then the pollen germination on the stigma will be prevented. Okay. Question number 3. Name the common function that cotyledons and nucellus perform. So cotyledons and nucellus, they both store the reserve food material which provides the nourishment or the nutrition to the growing embryo. So the answer is nourishment. Nourishment provide करने का ये जो function है ये common है दोनों में. Question number 4. Complete the following flow chart. Pollen mother cell, then pollen tetrad, then pollen grain, and then pollen grain has 2 types of cells, so vegetative cell and the other cell is the generative cell. Question number 5. Indicate the stages where meiosis and mitosis occur 1, 2 or 3 in the flow chart. So megaspore mother cell gives rise to megaspores, gives rise to embryo sac, gives rise to egg. तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक डिप्लॉइड सेल है. इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स और इन 4 मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं और जो एक मेगास्पोर है दैट अंडरगोज फर्दर माइटोसिस. तो यहाँ पर 1 इंडिकेट कर रहा है मियोसिस एंड 2 and 3 आर इंडिकेटिंग माइटोसिस. Okay. Question number 6. In the diagram given below, show the path of the pollen tube from the pollen on the stigma into the embryo sac. Name the components of egg apparatus. तो ये डायग्राम आपको गिवन है, ये आंसर नहीं है. ये डायग्राम आपको गिवन है, इसमें आपने इंडिकेट करना है पॉलन ट्यूब का पाथ. इसमें आपने शो करना है पॉलन ट्यूब का पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉलन ऑन द स्टिग्मा इनटू द एम्ब्रियो सैक. तो ये ड्रॉ करना है आपने. ये पॉलन ग्रेन का पाथ है. देखो ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, पॉलन से. स्टिग्मा पे है ये पॉलन ग्रेन और ये फिर पॉलन ट्यूब इट एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक. राइट. और कंपोनेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. एग एपरेटिस के कंपोनेंट्स है 1 egg cell and 2 synergids. Question number 7. Name the parts of pistil which develop into fruit and seeds. So the part of the pistil which develops into fruit is the ovary and the part which develops into seed is the ovule. Question number 8. In case of polyembryony, if an embryo develops from the synergid and another one from the nucellus, which is haploid and which is diploid? तो polyembryony की यहाँ पे बात हो रही है. Poly means many and embryony means development of embryo. So जब 2 से ज़्यादा embryos develop होते हैं from सिंगल एग तो उसको हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी. अब अगर ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है सिनर्जिड से तो वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा. और दूसरा केस अगर ये डेवलप हो रहा है न्यूसिलस से तो ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा. तो सिनर्जिड जो है वो हैप्लॉइड होता है तो उससे डेवलप होने वाला एम्ब्रियो भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा. क्यों? क्योंकि बीच में कोई मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई है. ठीक है. न्यूसिलस की जो सेल्स हैं वो डिप्लॉइड सेल्स हैं तो न्यूसिलस से बनने वाला एम्ब्रियो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा. सो synergid embryo is haploid and nucellar embryo is diploid. Next question number 9. Can an unfertilized apomictic embryo sac give rise to a diploid embryo? If yes, then how?
तो एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है, एम्ब्रियो सैक अनफर्टिलाइज्ड है और एपोमिक्सिस से बना हुआ है, तो क्या ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना सकता है? तो यस, बिल्कुल बना सकता है एम्ब्रियो। इफ दैट एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसिलस और इंटेगुमेंट, इट विल बी डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि न्यूसिलस अपने आप में, न्यूसिलस के सेल्स क्या है? डिप्लॉइड है, और इंटेगुमेंट के सेल्स भी क्या है? डिप्लॉइड है। तो इनसे बनने वाला एम्ब्रियो भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। Question number 10. Which are the 3 cells found in a pollen grain when it is shed at 3 cell stage? तो 3 cell stage पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 2 cell stage। वहाँ पे एक pollen grain में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। 3 cell stage में दैट जेनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स। तो यहाँ पर क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमीट्स होंगे इन द 3 cell stage of pollen grain. Question number 11. What is self-incompatibility? So the answer is self-incompatibility is a genetic mechanism. Very very important is a genetic mechanism. इस mechanism में genes involved हैं and prevents self pollen from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in pistil. तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मैकेनिज्म जो है वो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलन को, यानी कि सेम फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन को या फिर सेम प्लांट के फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स को फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि पॉलन जर्मिनेशन ही इनहिबिट हो जाती है। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं कर पाता है, या फिर अगर वो जर्मिनेट भी कर पाएगा तो पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं कर पाएगी पिस्टिल में, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन विल बी प्रिवेंटेड। ओके, तो दिस मैकेनिज्म विल एक्चुअली प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12. नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में मैंने पीछे आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो इसमें कौन सी टाइप की पॉलिनेशन होगी? जीनोगेमी और द क्रॉस पॉलिनेशन विल बी देयर। Question number 13. Draw the diagram of a mature embryo sac and show its 8 nucleate 7-celled nature. Show the following parts: antipodals, synergids, egg, central cell and polar nuclei. Now this is a very 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 important question from CBSE board point of view. बहुत बार ये embryo sac का diagram पूछा जाता है and you should practice it thoroughly. तो ये वाला डायग्राम आपने मैच्योर एम्ब्रियो सैक का ड्रॉ करना है, और इसमें ये सारे चिलेजल एंड है, चिलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स है। ठीक है, देन दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड हैज द एग एंड द 2 synergids which are the egg apparatus. These 2 are the polar nuclei and the central cell. Okay, so very very important diagram. So question number 14. Which is the triploid tissue in a fertilized ovule? How is the triploid condition achieved? So यहाँ पर triploid tissue जो है that is the endosperm. अब ये triploid condition endosperm की कैसे अचीव होती है, उसके लिए आपको डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जैसे देखो, पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो एक मेल गैमीट है that basically fuses with the egg and forms a zygote. ठीक है, this is called syngamy. This fusion is called syngamy. Zygote diploid है 2n. ठीक है, because male gamete is haploid and egg is also haploid, so zygote will be diploid. And the other male gamete that fuses with the polar nuclei, the 2 polar nuclei of the central cell, to form the primary endosperm nucleus which develops into the endosperm, and this endosperm is the triploid tissue that the question is asking. अब ये जो है ये ट्रिपल फ्यूजन, इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, और ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो है ये इसी तरीके से अचीव होती है। क्यों? क्योंकि आपका मेल गैमीट जो है वो हैप्लॉइड है और 2 पोलर न्यूक्लियाई दैट इज n+n, तो ये कितना हो गया? n, और n+n दैट इज 3n. ओके, सो दिस इज एक्सप्लेन्ड. इसका जो रीजन है वो ट्रिपल फ्यूजन है.
Okay, so you have to explain the triple fusion. This triple fusion you have to explain in this answer. Question number 15. Are pollination and fertilization necessary in apomixis? तो apomix is the production of seed without fertilization. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन नेसेसरी नहीं होते हैं एपोमिक्सिस में, क्योंकि एपोमिक्सिस ऑल्टरनेट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ऑल्दो फीमेल sexual apparatus is used in the process. In apomix, the embryos can develop directly from the nucellus or synergid or egg. तो यहाँ से डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की कोई भी नीड नहीं होती है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्पेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिवन. क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्पेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स गिवन बिलो. तो ये डायग्राम आपको गिवन है, ए और बी में आपने टाइप ऑफ कार्पेल आइडेंटिफाई करना है. राइट, सो ए जो है वो है मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस पिस्टल ऑफ पेपरवर्म. अब यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो, ये जो है यहाँ पर मल्टी कार्पिलरी, मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल कार्पल्स प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा कार्पल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये सिन कार्पस पिस्टल है. सिन कार्पस मतलब कि ये सारे कार्पल्स जो है ये आपस में फ्यूज्ड है. तो ये क्या बना रहे हैं, ये मिलकर के बना रहे हैं एक सिन कार्पस पिस्टल. ठीक है, सिन कार्पस पिस्टल वो होता है, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड. तो सिन कार्पस में ये सारे बहुत सारे कार्पल, मल्टी कार्पलरी बहुत सारे कार्पल्स हैं, और सिन कार्पस मतलब कि ये सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं. और किस प्लांट का है, पेपरवर का. ठीक है, पेपरवर इज अ साइंटिफिक नेम. और बी डायग्राम में अगर आप देखो, यहाँ भी मल्टी कार्पलरी कंडीशन है, यानी कि बहुत सारे कार्पल्स हैं, बट ये सारे कार्पल्स फ्यूज नहीं है, ये सारे कार्पल्स फ्री है. एपो का मतलब होता है फ्री, ठीक है, और कार्पस का मतलब कार्पल्स. तो बहुत सारे कार्पल्स हैं बट वो सारे फ्री है, फ्यूज नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड द एपोकार्पस गाइनोशियम एंड दिस इज ऑफ मिकेलिया. दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट. क्वेश्चन नंबर 17. हाउ इज पॉलिनेशन कैरिड आउट इन वाटर प्लांट्स. तो इस क्वेश्चन को आप बहुत सारे प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल्स लेकर के एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है और वाटर लिली है. इसमें क्या होता है, फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर. फ्लावर्स इमर्ज कर जाते हैं वाटर के लेवल से ऊपर, और फिर वो पॉलिनेट हो जाते हैं बाय द इंसेक्ट्स और विंड. ठीक है, और वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक. तो ये अगर सरफेस ऑफ वाटर है तो फीमेल फ्लावर जो है वो लॉन्ग स्टॉक के हेल्प से यहाँ पहुँच जाती है सरफेस ऑफ वाटर पे, और जो मेल फ्लावर्स हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पे सरफेस पे होते ही है. तो ये पॉलन, मेल फ्लावर्स पॉलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं जो कि वाटर में ही यहाँ पर फीमेल फ्लावर तक पहुँच जाते हैं और स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं. सो पॉलिनेशन अकर्स दैट वेज. ओके, अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस. सी ग्रासेस में क्या होता है, फीमेल जो फ्लावर है वो सबमर्ज्ड ही रहती है पानी में, वो वाटर के सरफेस तक ऊपर नहीं आती है, वो सबमर्ज्ड ही वाटर के अंदर ही रहती है, और पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं इनसाइड द वाटर. ओके, तो वाटर के अंदर ही पॉलिनेशन होती है. और पॉलन ग्रेन्स बहुत सारी स्पीशीज में लॉन्ग रिबन लाइक भी होते हैं, ताकि वो पैसिवली जो है वाटर के इनसाइड ही, वाटर के अंदर ही कैरी हो जाते हैं स्टिग्मा तक, ताकि पॉलिनेशन अचीव हो पाए. ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स प्रोटेक्टेड होते हैं बाय अ म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ताकि उसमें डेसिकेशन प्रिवेंट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टू मेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म. तो इसमें भी हमने जैसे डबल फर्टिलाइजेशन की बात करी पिछले क्वेश्चन में, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपका जो वन मेल गैमीट है वो मूव कर जाता है एग की तरफ, उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और कंप्लीट करता है सिनगेमी. तो फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विद द एग सेल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सेल एंड दिस फ्यूजन इज कॉल्ड सिनगेमी. एंड द अदर मेल गैमीट जो है दैट बेसिकली moves towards the two polar nuclei. These polar nuclei are located in the central cell and it fuses with the two polar nuclei to form a triploid primary endosperm nucleus, and this fusion is called the triple fusion.
और ये दोनों फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली होती हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. Okay, so that's it for today's video. Thank you for watching this video. If you like it, then share it and subscribe to Supporting Learners. Also hit the bell icon if you haven't till now, so that you don't miss any video.